Hello everyone. Today we are going to do an important topic. What is bar graph? What is histogram? And what is frequency polygon? These are the three types of representations. So we will discuss these all three in detail in this single video. First, bar graph. So bar graph, you all have seen the bar graphs in the TV, or you might have seen in the newspapers bar graph. So bar graph is pictorial representation. Bar graph is a pictorial representation. Pictorial means in the form of pictures. Bar graph is a pictorial representation of the numerical data, some data which is to be represented in the form of some pictures. Bar graph is the pictorial representation of the numerical data by using number of bars or rectangles. You can say number of bars, and to these bars you can say rectangles of uniform width, erected horizontally. Erected means standing horizontally or vertically. Erected horizontally or vertically with equal spacing, between them, So this is bar graph. How do we draw the bar graph? See, this graph paper is there and I have taken a scale and sharpened lead pencil. Now this is the horizontal line. It is called x-axis. And here is another vertical line, this, and this is called as y-axis. One is horizontal line and one is vertical. This is called origin. Now between this dark and this dark division there are 10 small divisions. So this I am marking these dots, or you can say small lines. This, so these small lines I have marked. Now here also after 10 divisions I am just marking these small lines. Now I am explaining this bar graph with the help of an example. Suppose there is a family and family has monthly income 20,000 and the family is planning to do the expenditures. एक फैमिली की 20,000 रुपीज इनकम है और उस फैमिली ने उस इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज पर खर्च करना है. तो जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दीज हेड्स. हेड्स मीन्स किस चीज के ऊपर उन्होंने उसको स्पेंड करना है, राइट? और यहां पर जो वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे वो है एक्सपेंडिचर. EXPENDITURE. एक्सपेंडिचर हम नॉर्मल बोलते हैं खर्चा. दैट हाउ मच मनी इज टू बी स्पेंट. एंड एक्सपेंडिचर इन 1,000 रुपीज. Expenditure in 1,000 rupees. So you can see here 20,000 total income. Now here grocery. On grocery 4,000 rupees are to be spent. Here I need to represent expenditure in 10,000. Like I have represented here 1,
तो ये हो गया 1000, 2 मीन्स 2000, 3 मीन्स 3000, 4 मीन्स 4000, 5 means 5000, 6 means 6000, 7 here means 7000, 8000। तो ग्रोसरी पे जो है वो कितना पैसा खर्च किया जाना है, 4000 रुपीज। तो ऐसे करेंगे, मान लो ये कॉलम जो है वो ग्रोसरी का है ये, तो ऐसे करके यहां 4 के ऊपर एक डॉट यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, राइट। अब इसे रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे दिस वे, ऐसे करके। सो दिस इज टू बी स्पेंट ऑन ग्रोसरी। अब आपने क्या करना है, इसमें यहां पर ग्रोसरी लिख लेना, चाहे ऐसे करके लिख लो या बीच में आ सकता है तो बीच में लिख दो ग्रोसरी, राइट। तो यहां से पता चल रहा है कि फैमिली ने ग्रोसरी के ऊपर 4000 रुपीज स्पेंड किया। उसके बाद 5000 रुपीज जो है वो रेंट पर स्पेंड किए गए, 5000। तो ये इसको रेंट बोलेंगे, और यहां पर एक डॉट और एक डॉट यहां पर। एंड नाउ वी हैव ड्रॉन दिस। सो दिस वे यू विल ज्वाइन। ये किसके ऊपर किया उन्होंने, स्पेंड रेंट के ऊपर, राइट। देन on education of children again 5000 were spent. So here this column, this is 5 and this 5, this and this we have joined and this is joined। तो ये किसके ऊपर स्पेंड किया, एजुकेशन के ऊपर, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन, राइट। नाउ आफ्टर एजुकेशन ऑन मेडिसिन 2000 रुपीज वर स्पेंट। तो यहां आएगा ऐसे करके 2000, ये ज्वाइन कर देंगे। दिस वे 2000 रुपीज वर स्पेंट ऑन मेडिसिन। फ्यूल के ऊपर भी 2000 स्पेंड किया गया। सो दिस इज 2000 हियर डॉट्स, इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। तो ये 2000 रुपीज किसके ऊपर आया, मेडिसिन के ऊपर। अब यहां पर आप फ्यूल लिख सकते हैं, फ्यूल हियर 2000 एंड ऑन मेडिसिन ऑल्सो 2000 रुपीज वर स्पेंट। अब एंटरटेनमेंट के ऊपर 1000, राइट। सो एंटरटेनमेंट के ऊपर यहां आएगा एक डॉट एक डॉट, दिस इज 1000 रुपीज। अब एंटरटेनमेंट इस बॉक्स के अंदर नहीं आएगा, मैं बाहर करके लिख दूंगा एंटरटेनमेंट। देन अगेन 1000 रुपीज आर स्पेंड ऑन मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। ये थोड़ा सा लाइन को इंक्रीज करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस को आगे की तरफ इंक्रीज कर दिया, दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये 1000 मिसलेनियस मीन्स डिफरेंट खर्चों के ऊपर जो है वो कितना स्पेंड किया गया, 1000 रुपीज। तो अगर आप इन सारी एक्सपेंडिचर्स को ऐड करें, दिस इज मिसलेनियस, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, यू विल गेट 20,000 रुपीज। तो ये क्या बना, बार ग्राफ। तो देखो रेक्टेंगल्स ड्रॉ की गई हैं विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। अब अगली बात आती है स्केल की। एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमने हेड्स रिप्रेजेंट किए, तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग स्केल लिखने की जरूरत नहीं। अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग ऑब्जर्व करो, ये जो है एक बिग डिवीजन होती है, इसको बोलते हैं वन बिग डिवीजन। तो वन बिग डिवीजन किसके बराबर है, 1000 रुपीज के बराबर। तो रुपीज 1000। सो दिस इज स्केल ऑफ द बार ग्राफ। ये हो गई बार ग्राफ की बात। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ यू मस्ट कीप सम थिंग्स इन माइंड।
कि विड्थ ऑफ बार्स शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ये नहीं यहां पर आपने बीच में स्पेस 1 छोड़ा और दूसरी रेक्टेंगल बनाने के लिए बीच में 4 जगह स्पेस छोड़ दिया। नो, द स्पेसिंग बिटवीन दीज रेक्टेंगुलर बार्स मस्ट बी यूनिफॉर्म। उसके बाद द गैप बिटवीन वन बार एंड अनदर बार शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इट इज वन एंड द सेम थिंग। बार्स शुड बी ईदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कई बार ग्राफ इस तरफ को भी आ जाता है, राइट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो वर्टिकल बार्स आर मेनली प्रेफर्ड एज आई हैव ड्रॉन बिकॉज दे गिव द बेटर लुक। ज्यादातर आप ऐसे ड्रॉ करें बिकॉज देयर लुक कम्स बेटर देन द हॉरिजॉन्टल, राइट। अब बार ग्राफ करने के बाद डिस्कस करते हैं हिस्टोग्राम। ये मैं सारा कंपैरिजन एक साथ एक वीडियो में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर सारा एक ही जगह पता चल जाए कि डिफरेंस क्या है। हिस्टोग्राम, सो व्हाट इज अ हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम, और वी कैन से इट फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, it is a graphical representation, it is a graphical representation of a frequency distribution in the form of rectangles, in the form of rectangles with class intervals as bases, with class intervals as bases and heights proportional to कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। और जो रेक्टेंगल्स की हाइट है वो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से होगी। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एंड देयर इज नो गैप, between two successive rectangles, अभी जो आपने किया था वो था बार ग्राफ, और बार ग्राफ में इक्वल स्पेसिंग थी रेक्टेंगल्स के बीच में। अब जो मैं आपको करवा रहा हूं एक एग्जांपल, वो होगी इसकी हिस्टोग्राम की। तो उसमें 2 सक्सेसिव रेक्टेंगल्स जो है वो आपस में बिल्कुल ज्वाइंट होंगी, राइट। तो इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल ड्रॉ करके बताऊंगा हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आप देखेंगे, अब ये ग्राफ लिया, एक हिस्टोग्राम बनाएंगे। जैसे मैं एक डाटा का ड्रॉ करता हूं। जैसे एक क्लास में टेस्ट हुआ, उसमें बच्चों के डिफरेंट मार्क्स आए। तो जैसे ये देखो, आप क्या करेंगे, यहां ग्राफ में एक्स एक्सिस लेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, this way you are to take one horizontal line और इसको बोलना है एक्स एक्सिस, और एक लाइन लेंगे आप वर्टिकल एंड यू विल से दैट इट इज वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ये है ओरिजिन। अब मान लो डाटा क्या है, डाटा इज लाइक दिस कि 0 से 10 मार्क्स, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। अब जो क्लास इंटरवल है वो मैक्सिमम 80 पर एंड हो रहे। तो आपको क्या करना है, 0 के बाद एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है 10, फिर लेना है 20, 10 डिवीजन छोड़ करके, फिर लेना है 30, फिर 10 डिवीजन छोड़कर लेना है 40, फिर लेना है 50, then you should take 60, then you should take 70, then you should take 80,
आप चाहे एक दो एक्स्ट्रा ले लो, 90, राइट। अब ये जो आपने एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया, ये क्या है, मार्क्स है ये, विच वर स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, उसमें 20 तक बच्चे दिखाए गए हैं। तो आप क्या करो, यहां 2 कर लो, यहां 4 कर लो, क्योंकि अगर आप 1 2 करोगे तो 20 तक हो सकता है ऊपर तक ना आए, तो स्केल को छोटी कर लो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब मान लो एक क्लास इंटरवल दिया है जिसमें 0 से 10 मार्क्स जो है वो 4 बच्चों के हैं, तो ये 0 है, और ये क्या लिया आपने, वाई एक्सिस के अलोंग, दिस इज फ्रीक्वेंसी, या यू कैन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं ऐसे करके लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग वाई एक्सिस। अब 0 से 10 के बीच में 4 बच्चे हैं, तो ये 0 है और ये 10 है, तो यहां पर एक डॉट लगेगा ऐसे, और आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देनी ऐसे करके। सो 0 to 10 के बीच में कितने, 4, ऐसे। अब अगला इंटरवल है 10 to 20, उसके बीच में 10 बच्चे हैं, तो ये 10 है, ये 20 है, कितने बच्चे हैं, 10। तो यहां से ऐसे ऊपर यहां पर डॉट लगेगा ऐसे करके, तो ऐसे ज्वाइन करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे रेक्टेंगल को, और ऐसे करके इसको क्या करेंगे, ज्वाइन। तो आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल ये बनी, तो दूसरी रेक्टेंगल बिल्कुल साथ में है, कोई स्पेसिंग नहीं है बीच में। दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल एंड देयर इज नो स्पेसिंग। फिर 20 to 30 में 16 बच्चे हैं, तो दिस इज 20 to 30 और ये है 16, यहां पर ज्वाइन करेंगे ऐसे, और इसको भी ऊपर इंक्रीज करेंगे एंड यू विल ज्वाइन लाइक दिस। फिर 30 to 40 में 22 बच्चे हैं, 30 to 40 में 22 बच्चे। अब ये आ गया 22 ऊपर करके, तो यहां से आप ऊपर लेके जाएंगे 22 तक ऐसे करके, और ये रेक्टेंगल भी ऊपर लेके जाएंगे, दिस इज 22। देन 20 बच्चे 40 to 50 में है, तो यहां तक आएगी वो बार, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, और नीचे तक एक्स एक्सिस तक लेके आएंगे ऐसे, तो ये आगे 20। उसके बाद 18 स्टूडेंट्स आर देयर, तो 18 कहां पर है, ये, तो आप इसको ऐसे ऊपर को ले जाओ एंड देन यू आर टू ज्वाइन हेयर, दिस इज 18। अब 8 स्टूडेंट्स आर 60 to 70 रेंज, 60 to 70 कितनी रेंज है, 8 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 60 to 70 में आए, वो है 8 बच्चे, ऐसे ज्वाइन किया और इधर ज्वाइन कर दिया ऐसे। फिर 70 to 80 में 2, 70 to 80 में 2 यहां तक, एंड वी हैव ज्वाइंड इट लाइक दिस। तो ये जो बना इसको बोलेंगे हिस्टोग्राम, राइट। अब हिस्टोग्राम में स्केल लिखेंगे, इसमें स्केल जो है वो दोनों एक्सिस के अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस, पहले तो एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे। देखो ये 1 बिग डिवीजन है, तो 1 बिग डिवीजन जो है वो कितने कितने गैप में है, 10 10 की, तो 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 10 मार्क्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग आपने रिप्रेजेंट क्या किए, मार्क्स। फिर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग आपने रिप्रेजेंट किए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 1 बिग डिवीजन जो है दैट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट द स्केल इन द क्वेश्चन ऑफ ग्राफ। तो ये था अबाउट हिस्टोग्राम, राइट। अब हिस्टोग्राम के बाद करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, राइट। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिस्कस करते हैं। दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
अब मैं यहीं पर इसी पेज पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपको समझा दूंगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, so what is frequency polygon? It is another method, it is another method to represent, it is another method to represent frequency distributions. It is another method to represent frequency distributions graphically. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्रेजेंट करने का ये एक और मेथड है हिस्टोग्राम से अलग, राइट। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी कैन बी ड्रॉन इन टू वेज। ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है इसको टू वेज से ड्रॉ किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी ड्रॉन इन टू वेज। दो तरीके से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। फर्स्ट वे जो है बाय यूजिंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के थ्रू, बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। और जो सेकंड है दैट इज विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, without using histogram. So this way we will draw the frequency polygon. अब आपको ग्राफ के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, राइट। तो जैसे एक डाटा लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग वन डाटा दिस। In a city, the weekly observations made in the study on the cost of living index are given below. Cost of living index ये है, number of weeks ये है, 140 to 150 5 weeks, 150 to 160 10 weeks and so on. So draw a frequency polygon for the data without constructing histogram. क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन किया गया कि आपने हिस्टोग्राम नहीं बनाना है। तो कैसे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? ये देखो, ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। दिस वे यू हैव केप्ट द स्केल एंड दिस इज एक्स एक्सिस। देन you will draw the vertical line y axis। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिप्रेजेंट करना है, राइट। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए 140 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम जो है वो 200 है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड भी लेके जाना है, ऐसे, राइट। दिस इज ओरिजिन, राइट। सो here we can start the values from 135 और you can say from 130। मान लो मैंने ये ऐसे करके 135 किया। ये किंक क्यों बनाया? बिकॉज अदर वैल्यूज आर हिडन इन दिस। फिर 5 के बाद 140, दिस इज 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 और एक और 5 का गैप कर रही है ना, तो 205, राइट। अब इसमें क्या करना होता है जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हो? अच्छा, दूसरा, नंबर ऑफ वीक्स में आपको 20 तक वीक्स दे रखे हैं, राइट। तो 20 तक अगर लेना थोड़ा मुश्किल हो तो स्केल को छोटा करो, 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। एक्स एक्सिस के अलोंग आपने क्या रिप्रेजेंट किया? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और वाई एक्सिस के अलोंग क्या रिप्रेजेंट किया आपने? नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स। जब भी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, आपको एक चीज जो है वो पहले पता होनी चाहिए कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट, किसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, राइट, प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल 20 to 30 एक क्लास इंटरवल है, इसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 25, राइट। तो जब भी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है बिना हिस्टोग्राम के, आपको ऐसे टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो इधर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया था, उसने वो ड्रॉ कर दिया। फिर फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वीक्स दिए थे। एक कॉलम आपको खुद ड्रॉ करना है। वो कैसे? जैसे मैंने अभी समझाया, क्लास मार्क दिस प्लस दिस अपॉन 2, 140 + 150 बने 290, 290 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 145। 150 + 160 अपॉन 2 ये, 160 + 170 अपॉन 2 दिस, 170 + 180 अपॉन 2 दिस, 180 + 190 डिवाइडेड बाय 2 इज 185, 190 + 200 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 195। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे, राइट। अब क्लास मार्क आ गए तो आप बोलोगे कि 140 के ऊपर 5 पर डॉट लगाएंगे। क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, 145 के ऊपर 5 पर डॉट लगेगा। तो अब आप देखो यहां 145 कहां है? ये इसके ऊपर 5 पर डॉट लगेगा। ऊपर को ऐसे जाना शुरू करना है, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, ये लगा दिया डॉट 145 के ऊपर 5 पर। अब 155 के ऊपर 10 पर डॉट लगाना है, तो दिस इज 155, ऐसे ऊपर गए और ये लगा डॉट। अब ये जो आ रहे हैं इनको आप साथ साथ ज्वाइन करते चलो ताकि आपको पॉइंट्स ना भूल जाएं, ऐसे। फिर 165 के ऊपर 20 पर डॉट लगाना है, तो ये 165 ऐसे ऊपर गए, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां एक डॉट लगा दिया 20 पर, और इसको साथ ही आपने ज्वाइन भी कर देना है, ऐसे। फिर 170 के ऊपर 9 पर डॉट, तो 175 ये ऐसे ऊपर गए, 9 आएगा, 8 और 10 के बीच में ये लगा 9 पर डॉट, और इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर देना, ऐसे, राइट। फिर 185 पर 6 पर डॉट, तो 185 ये ऐसे ऊपर गए, ऐसे, और ये आया इसके सामने 6, यहां लगा डॉट, आप इसको ज्वाइन कर दोगे ऐसे करके। फिर 195 के ऊपर 2 पर डॉट, तो 195 इज दिस, और ऐसे करके गए तो ये आया 2 पर डॉट। अब ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि पॉलीगन तो दोनों तरफ से ज्वाइन होता है। अब देखो आपने क्या करना, इससे पिछला इंटरवल सोचना है। इससे पिछला इंटरवल क्या रहा होगा? 130 to 140, 130 to 140, उसका क्लास मार्क क्या आएगा? तो 130 + 140 आप रफ में ऐड करके देखो, ये बना 270, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 2 3 135, राइट। तो आपका
यहां से ये शुरू होगा 135 से, ऐसे। ये जो आपने एक इंटरवल निकाला कि इससे पिछला इंटरवल क्या होगा, उसको इमेजिनरी इंटरवल बोलते हैं। अब इससे अगला इंटरवल क्या होगा, 200 से 210। अगर आप 200 प्लस 210 को ऐड करो तो 410 आता है, और 410 को 2 से डिवाइड करो तो आपके पास आएगा 205। तो अब आपने ये जो एंडिंग है वो कहां पर ज्वाइन करनी है, 205 के ऊपर, यहां पर ऐसे। अब ये पूरा पॉलीगन बना, क्योंकि पॉलीगन इज क्लोज्ड, तो यहां से शुरू होकर यहां पर क्या हो गया, क्लोज्ड। अब नेक्स्ट काम आपका है कि इसके जो है वो आपने पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये देखो, आपने 145 पर 5 ड्रॉ किया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 145,5। फिर 155 पर 10 किया, तो इसको 155,10 करेंगे। फिर 165 पर 20 किया, तो यहां लिखेंगे 165,20। उसके बाद 175 पर 9 किया, तो यहां 175,9। फिर 185 पर 6 किया, तो यहां लिखेंगे 185,6। फिर आपने 195 पर 2 किया, तो यहां 195,2। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगा 205,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और ये क्या वैल्यू है, 135,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो ये बना इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब अगला काम है स्केल लिखना। स्केल, तो अलोंग एक्स एक्सिस आप दे सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस गैप है कितने कितने का, 5 का। तो आप लिखेंगे 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। और वाई एक्सिस के अलोंग भी स्केल लिखेंगे, अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन। तो वाई एक्सिस पे देखो कितने कितने का गैप है, 2 का, तो 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम। आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन with histogram we will do in some other videos. I can show you right now. See, this way frequency polygon with the histogram is drawn. So in coming videos I will explain this also with the help of one question, that how the frequency polygon by using the histogram is to be drawn. I hope I could explain you better the difference between bar graph, histogram and frequency polygon, how these are to be drawn, what things are to be taken care. Now I want your sincere feedback, that up to what extent did you understand, so that by keeping that thing into mind I can post more videos and can make the graphical representation the most easiest for you. So waiting for your comments and likes, and if you have not subscribed the channel, do subscribe it. Thank you very much.